speaking cue card and follow-up questions. Describe a thing you did to learn another language. You should say what language you learned, what you did, how it helped you learn the language, and how you felt about it. So this is a cue card, and in this cue card we need to mention the another language that we know. आपको किसी और लैंग्वेज के बारे में बताना है जो आपने सीखी थी, जिसके बारे में आप जानते हो. वो कौन सी लैंग्वेज, आपने क्या किया था, आपने कैसे उस लैंग्वेज को सीखा और आपको कैसा लगा था. सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस यू नीड टू कवर इन योर क्यू कार्ड. सो लेट्स डिस्कस द सैम्पल आंसर. I started learning Spanish recently. I always wanted to learn a foreign language. I feel that knowing a foreign language allows us to understand different people, cultures and environment. I have an aunt in California who mentioned that she started learning Spanish. I thought she was so lucky to have an institution in her hometown that teaches Spanish. But then she told me that she was learning from a mobile app called Duolingo. She really loved the app and told me it had short lessons and all you need is 10 to 15 minutes a day. I downloaded the Duolingo app on my phone and a desktop version on my computer. I was so impressed with this app and couldn't believe that the basic version was free. It had more than 30 languages like German, French, Spanish, Chinese, etc. It had a very simple user interface and it was very easy to create an account, get started. I was really confused between learning French and Spanish but decided to go for Spanish. Spanish is the 4th most spoken language and is spoken in many countries like Spain, Mexico, South America. I also wanted to practice Spanish with my aunt online. I started doing lessons in my free time. I would do them on the bus while commuting to my college. I would do them while waiting for friends. It was so convenient to have on the go learning. One of the beginner lessons was common phrases like hello, hola, good morning, nice to meet you, mucho gusto. I really liked doing this lesson. I also started watching a Spanish show called Money Heist on Netflix to add to my learning. Duolingo presented the lessons in a very simple manner. It not only helped me with the speaking Spanish, but the lessons were designed to help me learn writing it too. Also, it was fun to do as there were rewards for reaching different levels and practicing daily. There was also an option to add friends and track each other's progress. I added my aunt and it kept us both motivated to learn. I'm still learning and still using the app every day. I'm so happy and satisfied with my efforts so far. I hope to become fluent one day. It gives me so much joy when I can completely understand a few lines on Spanish show or when recognize words in Spanish subtitles. In this cue card in my native language, so that will be easy for you to understand what I have mentioned in this video. So यहाँ पे उसने बोला कि मैंने रिसेंटली स्पेनिश लर्न करना शुरू किया और मैं हमेशा से एक फॉरेन लैंग्वेज लर्न करना चाहती थी और फॉरेन लैंग्वेज को जानना उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमें समझ आती है दूसरे लोगों की, दूसरों के कल्चर की, दूसरों के एनवायरनमेंट की. मेरी एक आंटी है कैलिफोर्निया में. जब हिंदी होती है तब आंटी बोलते हैं, बट अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में आंट होता है. तो मेरी एक आंट है कैलिफोर्निया में, उन्होंने मेंशन किया था मुझे कि वो स्पेनिश सीखना शुरू कर चुकी हैं. मैंने सोचा था कि वो कितनी लकी हैं कि उनके होम टाउन में एक इंस्टीट्यूशन है जो स्पेनिश सिखाता है. बट उन्होंने मुझे बताया कि वो तो एक मोबाइल ऐप से सीख रही हैं जिसका नाम क्या है, Duolingo, और उनको वो ऐप बहुत पसंद है. और वो बता रही थी मुझे कि उसमें शॉर्ट लेसन्स हैं और 10 से 15 मिनट ही दिन में चाहिए. मैंने भी डाउनलोड कर ली वो ऐप अपने फ़ोन पे और डेस्कटॉप वर्जन भी कर लिया अपने कंप्यूटर पे. मैं बहुत इम्प्रेस हुई उस ऐप से. एंड आप मानोगे नहीं कि उसमें बेसिक वर्जन जो था वो फ्री था एंड उसमें 30 लैंग्वेजेस से ज़्यादा लैंग्वेजेस थी जिसमें जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़ थी. एंड उस बड़ा ही सिंपल यूज़र इंटरफेस था, मतलब बड़े इजीली मैंने लॉगिन कर लिया, अकाउंट बना लिया. एंड मैं बहुत कंफ्यूज थी पहले कि मैं फ्रेंच सीखूं या स्पेनिश. देन मैंने सोचा कि मैं स्पेनिश सीखूं. नो बॉन्जोर, आई विल गो विद होला. स्पेनिश जो है 4th लैंग्वेज है जो बोली जाती है ज़्यादातर वर्ल्ड में, और काफ़ी कंट्रीज़ में जैसे स्पेन, मैक्सिको, साउथ अमेरिका में तो ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है. तो मैंने भी अपनी आंट के साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस शुरू कर दी और मैं ये लेसन्स अपने फ्री टाइम पे करती थी. जब मैं बस में होती थी कॉलेज जाने के लिए तो मैं फ्री थी, तो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक की जगह ये सीखना शुरू कर दिया.
और जब मैं अपने फ्रेंड्स की वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट था, इतनी जल्दी हाथ में है मेरे ऐप और मैं लर्न कर रही हूँ। और बिगनर्स के लिए जो लेसन था उसमें जैसे हेलो को स्पेनिश लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, होला बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू को क्या बोलते हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। इवन एक स्पेनिश शो मनी हेस्ट है, नेटफ्लिक्स पे आता है, मैंने वो भी स्टार्ट किया सो दैट मुझे जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से समझ आए। डुलिंगो में जो लेसन्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। मुझे ये लेसन्स बहुत अच्छी तरह हेल्प कर रहे थे स्पेनिश बोलने में, और ये ऐसे डिज़ाइन है कि आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो और लिख भी सकते हो। एंड इट वॉज फन टू डू। क्योंकि इसमें रिवॉर्ड सिस्टम भी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और डेली प्रैक्टिस करोगे तो उसके भी पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन भी थी कि आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो और उनको ट्रैक भी उनकी प्रोग्रेस रख सकते हो। मैंने अपनी आंट को ऐड कर दिया और हम दोनों मोटिवेटेड रहते थे कि हाँ इसके इतने पॉइंट्स आ गए, इसके इतने। आई एम स्टिल लर्निंग एंड स्टिल यूजिंग द ऐप एवरी डे। इट्स वेरी सिंपल, मैं ये यूज कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई एफर्ट सो फार। तो अभी तक के जितने मेरे एफर्ट्स हैं मैं उससे हैप्पी हूँ, और मुझे आशा है कि मैं एक दिन फ्लुएंट हो जाऊंगी। और मुझे इससे बड़ा मजा आता है। मैं कुछ लाइनें स्पेनिश में अब समझ पाती हूँ। जब मैं शो देखती हूँ तो मैं रिकॉग्नाइज कर पाती हूँ सबटाइटल से क्या ये बोल रहे हैं। Now I'll be discussing the follow-up questions of the same cue card. First, what difficulties do people face when learning a language? One of the challenges is the phonological difference. There are some sounds that exist in one language but not in the other language. Another difficulty is learning the grammar and the sentence structure of the new language. कहता क्या लोगों को फेस आता है, प्रॉब्लम फेस आती है जब वो कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं। एक तो साउंड्स, कई में क साउंड है तो लिखने में च होता है, या कईयों में च साउंड है तो लिखने में क होता है, ए ई। तो ये साउंड्स की प्रॉब्लम लोगों को अक्सर मुश्किल लगती है। और प्लस ग्रामर तो हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में भी लगती है, सेंटेंस नहीं बनते, सेंटेंस फॉर्मेशन की। तो गाइज अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप हमारी ग्रामर की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, और हमारी यूट्यूब वीडियोज पे भी हमारी ग्रामर की वीडियोज हैं, स्ट्रक्चर सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियोज हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक लैंग्वेज लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट एंड वाई? कहता है आपको लगता है कि लैंग्वेज लर्निंग इंपॉर्टेंट है और क्यों है? यस, आई थिंक लैंग्वेज लर्निंग इज इंपॉर्टेंट एज ए डेवलप स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन एंड कल्चरल अवेयरनेस. Learning a foreign language also open all sorts of career opportunities. Learning new languages leads to cognitive development. Bilingual and multilingual children do better in other subjects too. तो इसमें कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमें कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करती है, स्किल्स डेवलप होती हैं, हमारी कल्चरल अवेयरनेस होती है. फॉरेन लैंग्वेज आना मतलब आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाती हैं. अगर आप अपने सीवी में लिखोगे कि आपको हिंदी पंजाबी आती है तो ओके, यू विल गेट few jobs, but when you'll mention English language too, तो वहां पे आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई. और अगर आपको एक, दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है. और जिन बच्चों को ये चीजें आती हैं, दो लैंग्वेज से ज्यादा आती हैं, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा ही करते हैं. नेक्स्ट, which is better to study alone or to study in a group and why? It is better to study in a group. मुझे लगता है ग्रुप में स्टडी अच्छी होती है. अब जब ये पॉइंट्स मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो उसके लिए मैं फिलर्स यूज करूंगी. फिलर्स के लिए मैं यूज करूंगी, फर्स्ट, students derive energy from being around other students and are motivated to study. Second, concepts that are hard to grasp by yourself are easier to understand from another person's perspective. Third, people usually procrastinate when studying alone, but in a group one is accountable and must be present. So, जब ये मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूज किया तो मैंने एग्जामिनर को क्लियर किया कि आई नो माई पॉइंट्स, मुझे अपने पॉइंट्स पता है और मुझे सेग्रीगेट करना आता है, मुझे एग्जीक्यूट करना आता है और आपने ऐसे ही बोलना है. तो दिस विल हेल्प यू टू हैव अ क्लियर एंड क्रिस्प आंसर. नेक्स्ट, what's the best way to learn a language? There are many ways to learn a language. There's no one best way. One must do a combination of things to get fluent in a language, like practicing daily on language, learning apps like Duolingo, watching movies in a foreign language, reading books and newspaper, having a tutor or a native speaker online to practice with, and traveling to those countries. So there are many things that you can do. For example, practicing daily on language learning apps like Duolingo, watching movies in foreign language, English movie देखना शुरू कर दो with subtitles, reading करना शुरू कीजिए, बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर, ट्यूटर कोई रखिए जिसको वो लैंग्वेज आती है, ऑनलाइन प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए.
गाइज अगर आपको कुछ भी स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। हम लोग और वीडियोस डाल रहे हैं सो दैट आपको घर बैठे कंटेंट मिल जाए एंड आप जल्द से जल्द अपना IELTS का एग्जाम क्लियर करें। तब तक के लिए sayonara. Don't forget to like and subscribe this channel. Till then, sayonara.